नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है मॉक टेस्ट 19 यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 के लिए। दिस इज मॉक टेस्ट 19 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 and I am Dr. Annapurna Singh. So let's start with the mock test. Question 1. Assertion. Phosphorus limits eutrophication if nitrogen is 8 times more abundant than phosphorus. Reason. About 8 times more nitrogen is required by the plants than phosphorus. So what is the correct answer? Both A and R are correct and R explains A. Both A and R are correct, but R doesn't explain A. A is true, but R is false, and R is true, or R is true, but A is false. The correct answer is A. Both A and R are correct, and R explains A. Because about 8 times more nitrogen is required by plants than phosphorus. So if nitrogen is already in abundance, about 8 times more abundant than phosphorus, then phosphorus will be in shortage and phosphorus will limit eutrophication. तो phosphorus जो होता है वो कम चाहिए होता है प्लांट्स को, और नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। अगर नाइट्रोजन बहुत अबंडेंट है ऑलरेडी और फॉस्फोरस कम है, तो फिर अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो यूट्रिफिकेशन अपने आप लिमिट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 2. According to Convention on International Trade in Endangered Species CITES, COP17, which of the following species was transferred from CITES Appendix 2 to Appendix 1 by January 2017? तो CITES जो है Convention on International Trade in Endangered Species COP17 के अंतर्गत एक स्पीशीज थी जो अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में, अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 1 में ट्रांसफर किया गया था। तो जो अपेंडिक्स 2 होता है उनके वो जो होता है एक लिस्ट होता है प्रोटेक्टेड स्पीशीज का, जिन स्पीशीज के को इंटरनेशनली ट्रेड किया जा सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है एक लिमिट। और जो अपेंडिक्स 1 होता है वो उन स्पीशीज की लिस्ट होती है जिसमें कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकता, जिनको कभी नहीं मारा जा सकता, जिनके साथ कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो स्पीशीज होती हैं वो थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जिनकी जो संख्या है वो पर्यावरण में वैसे ही कम है, तो उनको कोई खरीद फरोख्त नहीं की जाती है, तो वो थ्रेटेंड एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं। तो जो पैंगोलिन है ना, ऑप्शन है गोरिल्ला, टपेर, मंगूस, पैंगोलिन। पैंगोलिन एक स्पीशीज है जिनका की इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से संख्या में बहुत कमी आ गई थी, और इसलिए उसको अपेंडिक्स 2 से हटा के अपेंडिक्स 1 में कर दिया कि उनमें उनके ऊपर सारा इंटरनेशनल ट्रेड अब बैन है। सो अपेंडिक्स 2 इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज वेयर इंटरनेशनल ट्रेड इन अ रेगुलेटेड मैनर इज अलाउड, but Appendix 1 consists of list of endangered species where international trade is completely banned. So the correct answer was 2. Pangolin was transferred from Appendix 2 to Appendix 1 because the number of pangolins in the environment was dwindling very fast due to international trade. Answer is B. Okay. Question number 3. The unidirectional change from an uninhabited water body to a water body inhabited by a stable aquatic community are called eutrophication, no. Succession, regeneration, and reclamation. So eutrophication is certainly not the answer because eutrophication gives rise to an unstable aquatic community. But stable aquatic community means succession. Succession means slow progression towards a stable ecosystem. That's succession. Okay. Regeneration means something has lost its value and it's naturally regaining its value. So that is also not correct. Reclamation is something or a water body or an ecosystem has been degraded and man-made anthropogenic activity, anthropogenic interference is helping it reclaim itself. So that is not also correct. The unidirectional is one directional change from uninhabited water body to a water body that is inhabited by a stable aquatic community, that is succession. तो यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है कि एक तरफ से अनइनहैबिटेड वाटर बॉडी था, पहले कुछ नहीं था वहां पे, और अब एक स्टेबल कम्युनिटी, एक्वेटिक कम्युनिटी वहां पे हो जाएगा। तो ये जो यूनिडायरेक्शन एक तरफा जो बदलाव है कि कुछ भी नहीं था और उससे एक स्टेबल कम्युनिटी तक, उसको हम सक्सेशन कहते हैं। यूट्रिफिकेशन में अनस्टेबल होता है, इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है कि वो अनस्टेबल अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो जाता है और इकोसिस्टम डेड हो जाता है, तो यूट्रिफिकेशन आंसर नहीं है। रिजेनरेशन क्या होता है कि आप कोई वैल्यू या कोई पार्ट खो गया और उसको नेचुरली वो रिजेनरेट कर रहा है, तो वो भी नहीं है। रिक्लेमेशन क्या होता है कि कोई पॉन्ड या इकोसिस्टम डेड हो गया और वो नेचुरल और उसको मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, मतलब हम लोग इंसान, हम साइंटिस्ट मिलके उसको फिर से रिक्लेम करते हैं। जैसे कोई लेक डेड हो गया यूट्रिफिकेशन के बाद,
फिर हमने उस लेक की सफाई करके और फिर से उसको पहले जैसा कर दिया, तो वो रिक्लेमेशन होता है। पर जो सक्सेशन, जो नेचुरल यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, एक तरफा जो प्रोसेस है कि कुछ भी नहीं था वहां पे, फिर धीरे 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 उसमें एक स्टेबल कम्युनिटी इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन मतलब प्रोग्रेशन, धीरे 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 एक स्टेबल कम्युनिटी की ओर सक्सेशन कहते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी होता है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4, असर्शन, सैंडी सॉइल हेल्प्स प्रमोट गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। सही बात है, इट्स करेक्ट। रीजन, sandy soil particles have soils in the range of 0.5 mm to 2 mm. Correct. Sandy soil particles have bigger soil particles in the range of 0.5 to 2 millimeter. That's the correct answer, because the pore particle size is bigger, that makes bigger pore size, and that promotes good drainage and aeration. So correct option is A. Both A and R are correct, and R explains A. तो सैंडी सॉइल में ड्रेनेज और एरेशन अच्छा होता है क्योंकि उसका जो पार्टिकल रेंज है वो 0.5 टू 2 मिलीमीटर तक होता है। मतलब पार्टिकल का साइज बड़ा है तो पोर साइज भी बड़ा होता है पार्टिकल्स के बीच में, और इसकी वजह से जो ड्रेनेज और एरेशन होता है सैंडी सॉइल का वो अच्छा होता है। तो आंसर ए होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन 5, टिल जुलाई 2017 द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर। यहाँ पे आर की जगह वर होना चाहिए बिकॉज ये 2017 में सवाल पूछा गया था, इसलिए आर है। तो 2017 तक नेशनल पार्क की संख्या हमारे देश में कितनी थी? सही उत्तर है 103। 2017 तक 103 थी, पर आज के डेट में 106 है। Till July 2017 there were 103 total number of national parks in India, and now there are 106. So now if the question comes, you will write 106. Okay. Question number 6. Which country has the maximum global ecological footprint? So any country with the maximum number of people will have the maximum global ecological footprint. The global ecological footprint is the amount of effect that one person has on the resources of the world. So China की population सबसे ज्यादा है. China is the most populous country. Maximum number of people having maximum number of impact on the environment. So answer is B, China. Question 7. Assertion. Climate change induced monsoon variability may have serious consequences for Indian agriculture. ठीक है. Reason 2. 2/3 of area under cultivation is dependent upon the rains. Correct. Because climate change induced monsoon variability will have serious consequences for Indian agriculture. और उसका कारण ये होगा क्योंकि 2/3 एरिया जो है हमारा कल्टीवेशन, हमारा जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, और वो बारिश पे डिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए. ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर एक्सप्लेन्स ए. ठीक है, ये रीजन है, और रीजन जो है सही है बिल्कुल. In which year was the Namami Gange integrated Ganga conservation mission program under National Ganga River Basin Authority scheme launched? तो ये जो नमामि गंगे कंजर्वेशन मिशन है ये कब शुरू हुआ था? 2014 में, 2015 में, 1989 में, या 2012 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए. जून 2014 में शुरू हुआ था नमामि गंगे प्रोजेक्ट. ओके, आंसर इज ए. क्वेश्चन 9. Which state in India is a pioneer in making rainwater harvesting as a compulsory measure in towns to avoid groundwater depletion? इंडिया में, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो विकल्प है उसको मैंडेटरी लागू, उसको एकदम जरूरी लागू कर दिया है, और ग्राउंड वाटर डिप्रेशन को, मतलब कि जो जमीन के नीचे जो पानी है उसकी कमी को दूर करने के लिए? केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? उत्तर है सी, तमिलनाडु. क्योंकि तमिलनाडु एक राज्य है जिसमें कि पानी, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है वो एकदम खत्म हो गया था, और उसकी वजह से उसके जो जमीन के नीचे के पानी के जो स्रोत होते हैं वो सारे सूख गए थे, और इसकी वजह से तमिलनाडु में हर साल गर्मियों में पानी की भीषण समस्या हो जाती है. ठीक है, आंसर है सी, तमिलनाडु. और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिस वीडियो का नाम था चेन्नई द रेन रिच बट वाटर थर्स्टी सिटी ऑफ इंडिया, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसके बारे में और डिटेल में जान सकेंगे. क्वेश्चन 10. ओजोन एज अ ग्रीन हाउस गैस अब्सॉर्ब्स एंड इमिट्स वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ. तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू मेमोराइज दिस फैक्ट. द आंसर इज ए, 9.6 माइक्रोमीटर. ठीक है. Question 11. Ecological restoration is the process of rebuilding a degraded ecosystem till
It becomes pollution free and previous solace to the people, provides solace to the people. No. It becomes free of disturbance. Ecosystems can never be free of disturbance. Its structure and functions are restored. This looks like the correct answer. And the final answer is it starts providing some ecosystem services. The answer is C. Its structure and functions are restored. So if an ecosystem becomes degraded, you rebuild it, you reclaim it until its structure, the original structure and functions that it was performing are restored. So answer is C. Its structure and functions are restored. तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो डिग्रेड हो चुका इकोसिस्टम है, जो कि खराब हो चुका इकोसिस्टम है, उसको हम रिबिल्ड करते हैं, रिक्लेम करते हैं. और कब तक रिक्लेम करते हैं? जब तक कि उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है, मतलब जिस तरह का वो ढांचा है उसका इकोसिस्टम का, जो ढांचा था, जिस तरह के जीव जंतु उसमें थे, और फंक्शन जो रोल इकोसिस्टम प्ले करता था इन्वायरमेंट में, वो सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है, तो रिस्टोर हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है. तो आंसर होगा सी. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर रिस्टोर्ड. बाकी जो बात है, इट बिकम्स पोल्यूशन फ्री एंड प्रोवाइड्स सोलेस टू द पीपल, तो पोल्यूशन फ्री एक बार हो जाएगा, फिर दोबारा से भी पोल्यूशन हो सकता है उसमें. इट बिकम्स फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ इकोसिस्टम में लगा ही रहता है. इट स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम इकोसिस्टम सर्विसेज. जब थोड़ा बहुत इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करता है, तो इसका मतलब आपका जो एफर्ट है, आपने जो कोशिश की है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है, पर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ है. पर जब उसका पहले जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों रिस्टोर हो जाता है, रिस्टोर मतलब पहले की तरह हो जाता है, तो हम उसको समझ जाते हैं कि हमने उसका पूरा रिस्टोरेशन कर दिया है. तो सी होगा आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट वेटलैंड इकोसिस्टम्स. They are transitional zones between terrestrial and aquatic ecosystems. Correct. They are highly productive. Correct. They are sources of greenhouse gases. This is also true because methane is generated from wetland ecosystems. They normally occur in the floodplains of river. This is also true because a lot of wetland ecosystems do occur in the floodplains of river. Choose the correct option. All of them are correct. So ecosystem, wetland ecosystem के बारे में 4 बातें कही गई. एक है कि वो ट्रांजिशन जोन होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच में, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में कहीं वो आता है. सही बात है. वो हाईली प्रोडक्टिव होता है, ये भी सही बात है. और ग्रीन हाउस गैस का सोर्स होता है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि वेटलैंड्स जो मार्ची और दलदली जमीन होती है, उससे सबसे ज्यादा मेथेन प्रोड्यूस होता है, तो ये भी सही बात है. और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है. दे नॉर्मली ऑकर इन फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, तो मतलब कि वो फ्लड प्लेन क्या होता है? नदी से 500 मीटर की दूरी पर जो एरिया होता है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं, तो वो उसमें दलदली जमीन होती है, तो ये बात सच है. तो ये सारी बातें सच है, तो आंसर होगा डी, ऑल. क्वेश्चन 13 नंबर का सवाल. इन सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम द टिलेज वेयर रेसिड्यूज ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स आर लेफ्ट इन द सॉइल इज कॉल्ड ए रिड्यूस्ड टिलेज, बी नो टिलेज, सी कंजर्वेशन टिलेज, और डी कॉन्ट्रोल प्लॉइंग. कॉन्ट्रोल प्लॉइंग होती है कि सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो वो नहीं होता है. रिड्यूस्ड टिलेज और नो टिलेज भी नहीं होगा. आंसर होगा सी, कंजर्वेशन टिलेज. कंजर्व का मतलब होता है उसको बचाना. तो सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत जो टिलेज होता है, उसमें क्या होता है, जो पिछली जो हमने फसल उगाई थी उसका जो रेसिड्यू हो जाता है, जो अपने फसल काट ली ऊपर से, जैसे धान है, धान को ऊपर से काट लिया, उसके बीज वगैरह निकाल लिए, तो जो नीचे जो उसका जो धान के जो जड़ के ऊपर की से 6 इंच जो बच जाता है, उसको छोड़ दिया अगर आपने, तो उसको हम कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं, कि उसको कंजर्व कर लिया आपने. जहां वो था जिस खेत में, वहीं उस खेत में सड़ने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया, और बाद में वही सड़ सूख के उस खेत का मैनर, उस खेत को फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा, जिससे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो ऐसा भी करते हैं कभी कभी. धान का मैंने एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि वो फसल धान ही हो, कोई और फसल भी हो सकती है. ऊपर से हम काट लेते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं, सो कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं. सो द आंसर विल बी सी, कंजर्वेशन टिलेज, वेयर वी कंजर्व पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप in the soil. The audit on the conservation and protection of tigers in all 28 tiger reserves were conducted in which year? तो टाइगर जो 28 टाइगर रिजर्व है भारत में, और उनमें एक ऑडिट, सारे 28 टाइगर रिजर्व में एक ऑडिट किया गया था. तो वो ऑडिट किस सन में किया गया था? ओके, 2001 में, या 2004 में, या 2006 में, या 2007 में? According to me, the answer should be A. Both A and R are correct and R explains A. But according to UGC, the answer is both A and R are correct, but R doesn't explain it. However, I think the area in the upper catchment of the river gets inundated, and this stops the proper flow of water and nutrients downstream, and that is why the ecosystem surrounding the river gets damaged. So I think the answer should be A, but the UGC answer is B. So please let me know in the comments below what your thoughts are. Question 16. Assertion A.
Large parts of India are already getting water stressed. Reason R, climate change may be the main reason. So the option is both A and R are correct, and R explains A. A and R are correct, but R doesn't explain A. A is true, but R is false. R is true, but A is false. I think large parts of India are already getting water stressed because of urbanization and faulty land use practices rather than climate change. Like, for example, Chennai, it always experiences a water crisis in the summer. And this doesn't happen because there is a shortage of rainfall. It happens because people have concretized the entire cities, their roads, the houses, the area around the houses, and there is no place for rainwater to go into the underground reservoir of groundwater. And that is why there is a shortage of underground water, and that is why people are experiencing water crisis. So unplanned urban development, urbanization, faulty land use practices are to be blamed rather than just climate change. So the correct answer is both A and R are correct, but R doesn't explain. Sorry. So the correct answer will be C. A is true, but R is false. Climate change may not be the main reason. Climate change is a subsidiary reason. Main reason is faulty land use practices. तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा. ए तो सही है पर आर गलत है. क्लाइमेट चेंज मेन रीजन नहीं है कि आपके शहर में पानी की दिक्कत हो रही है. आपके शहर में जैसे चेन्नई में पानी की दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हर जगह मकान बन गए और पक्के मकान बन गए. मकान के इर्द गिर्द जो गार्डन का एरिया होता है वहां भी लोगों ने पक्की करा दी. सड़कें पक्की हो गई, तो कहीं कोई जगह ही नहीं बचा जिससे कि बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सके और फिर बाद में आप उसको पानी को निकाल सके गर्मियों में. तो इसलिए जब बारिश का पानी जमीन के अंदर ना जाके सीधे समुद्र में चला गया या नालों में बहता हुआ शहर के बाहर कहीं भी चला जाए तो फिर ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज हुआ नहीं और इसलिए फिर आपको गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है. तो इसलिए ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज का जो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन क्लाइमेट चेंज नहीं, उसका मेन रीजन है फॉल्टी अर्बनाइजेशन, फॉल्टी सिटी प्लानिंग, फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिस. ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और यही सही उत्तर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का सवाल, व्हाट इज इकोसिस्टम डिग्रेडेशन? इकोसिस्टम डिग्रेडेशन क्या है? A, loss or decrease in biodiversity? Yes. B, modification in the structure of abiotic components. Abiotic components means soil, air, water. Yes. Impairment of ecosystem processes such as nutrient cycle. That is also true. तो ये तीनों ही सही नहीं. तो आंसर, choose the correct option. आंसर होगा D, all of the above. In which state were rhinos introduced under the rhino relocation project in 1987? I'm sorry, this. तो राइनोस जो राइनोसोरस जो होता है वो किस राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर आसाम है. बहुत ही आसान आंसर है. हम सब जानते हैं कि आसाम में राइनोसोरस का कंजर्वेशन हुआ था. आसाम इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी इजी आंसर. वी ऑल नो इट. क्वेश्चन 19. इंडिया सबमिटेड इट्स INDCs related to climate change to UN recently. What does INDC stand for? A, intended nationally devoted contributions? No. Intended nationally determined contribution? Yes. Intended notified recessive contributions? No. In India's nationally determined contributions? No. Intended nationally determined contributions. और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. INDC क्या होता है? What is an INDC? Here it is. INDCs are the primary means for governments to communicate internationally the steps they will take to address climate change in their own countries. अपने अपने देश में climate change को रोकने के लिए वो क्या करेंगे, वही होता है INDC. INDCs reflect each country's ambition for reducing emissions, taking into account its domestic circumstances and capabilities. Some countries also address how they'll adapt to climate change impacts and what supports they need from or will provide to other countries to adopt low carbon pathways and build climate resilience. ठीक है, तो ये हुआ INDC. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a characteristic of organic wetland soil? So the important thing here is organic wetland soil. So clearly organic wetland soils have high cation exchange capacity. So the correct answer will be 20A. So what is cation exchange capacity? Cation exchange capacity is a property of a soil that describes its capacity to supply nutrient cations to the soil solution for plant uptake. Organic soils have cation capacity
high cation capacity and they make high amount of nutrients available to plants. So the answer will be A, high cation capacity. Other answer options are high bulk density. So bulk density is the mass of many particles of the material divided by the total volume they occupy. For low porosity. Porosity is having pores for air and water to pass, and high nutrient availability. So wetlands actually are rich in nutrients. So actually all of them, these answers are correct in their own right, but the most appropriate answer is A. तो जो कौन सी ऐसे ऑर्गेनिक वेटलैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हाई कटायन कैपेसिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो वेटलैंड होता है उसका कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत हाई होता है और वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट को, तो आंसर होगा ए। हालांकि ये जो आंसर्स है ये इनमें से भी कोई गलत नहीं है, पर सबसे जो सही उत्तर है वो है ए। अगर आंसर होता डी तो शायद ऑल ऑफ देम ही होता, बट एक चुनना है तो ये चुनना, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आज जो हमने मॉक टेस्ट किया है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे और मॉक टेस्ट के लिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, इन्वायरमेंटल साइंसेस के फ्री लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस के लिए, और इन्वायरमेंटल साइंसेस से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।